Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel Take English. Today I will discuss the poem Fire and Ice from the book First Flight with all of you. Students, as you can see, there are two words that are just opposite to each other, fire and ice. So the writer has these two contradictory words to symbolize some human emotions. So fire is symbolizing fiery passion and desires of the human being, and ice is symbolizing the hatred, the coldness toward the suffering of the people. So this poem is having only 9 lines and it is a symbolic poem. So the writer is giving a very important message to all the humanity. So you have to read this poem very much carefully. So in this lecture I will discuss about the author, title, theme, explanation and central idea with all of you. So let's start. First of all, I will discuss about the author. You have read one poem written by this poet, that was The Road Not Taken in class 9th. Robert Lee Frost was born on March 26, 1874 in US and died on January 29, 1963 in Boston. So he was basically an American poet, and he was admired for his depiction of the rural life of New England. तो इन्होंने अपने वर्क्स में न्यू इंग्लैंड के रूरल लाइफ को डिपिक्ट किया है. His command of American colloquial speech means जनरल डे टू डे लाइफ जो कन्वर्सेशन होता है उसको उन्होंने अपने पोएम में दिखाया है. एंड हिज रियलिस्टिक वर्ड्स पोर्ट्रेइंग ऑर्डिनरी पीपल इन एवरीडे सिचुएशन. वर्ड्स मतलब पोएम, तो इन्होंने अपने वर्ड्स में, अपने पोएम्स में ऑर्डिनरी पीपल को भी बताया, ऑर्डिनरी पीपल को एज अ कैरेक्टर इन्होंने डिस्क्राइब किया है. He is the only poet to receive 4 Pulitzer Prizes for poetry in 1924, 1931, 1937 and 1943. तो ये ऐसे एक ही पोएट हैं, ओनली पोएट हैं जिन्हें 4 Pulitzer Prizes for poetry मिला. सो 1924 में इन्हें मिला न्यू हैम्सफायर के लिए, जो कि 1923 में पब्लिश है. 1931 में इन्हें मिला है कलेक्टेड पोएम, जो कि 1930 में पब्लिश है. 1937 में इनको पुलित्जर प्राइज मिला फॉर अ फर्दर रेंज, जो कि 1936 में पब्लिश है. एंड इन्हें लास्ट पुलित्जर प्राइज जो मिला 1943 में, जो कि अ विटनेस ट्री 1942 में पब्लिश है, इसके लिए मिला. तो ये सभी पोएटिक कलेक्शन है इनके. एंड फायर एंड आइस इज ऑल्सो अ पोएम दैट वॉज पब्लिश्ड इन अ पोएटिक कलेक्शन नेमिंग न्यू हैम्सफायर. And as you can see, the Pulitzer Prize is given after 1 year of the publication of the book. He was nominated for Nobel Prize in Literature 21 times. So as you can see, his popularity in the field of literature, that he was nominated for the Nobel Prize in Literature 21 times. On July 22, 1964, he was named Poet Laureate of Vermont. और इन्हें 1964 में Poet Laureate बना दिया गया. So this was all about the poet. So now I will tell you something about the poem regarding the publication, regarding the inspiration for the theme of the poem. So this poem was published in December 1920 in Harper's Magazine and in 1923 in the book New Hampshire. So पहले ये poem एक मैगजीन में पब्लिश हुई और उसके बाद न्यू हैम्पशायर जो इनकी बुक है, पोएम कलेक्शन है, उसमें पब्लिश हुई. एंड द पोएम डिस्कसेस अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. और हमें ये क्या बताती है पोएम? दैट दिस वर्ल्ड कैन बी डिस्ट्रॉयड विद द इमोशन ऑफ डिज़ायर एंड विद द इमोशन ऑफ हेट्रेड. तो यहाँ पे 2 वर्ड आए हैं, 2 सिंबल आए हैं, फायर एंड आइस, और ये दोनों कुछ इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिम्बलाइज करते हैं. In a 1999 article, John Anserio claimed that this poem is inspired by a passage in Canto 32 of Dante's Inferno. So Dante was a very famous writer, and he has written a very famous work, that is Inferno. और Inferno की Canto 32 में उन्होंने एक पैसेज लिखा है, किस बारे में? About the hell. ये वर्क पूरा हेल की थीम पे ही बेस्ड है. उन्होंने इस वर्क में हेल को इमेजिन किया है, दैट व्हाट विल बी द इमेज ऑफ द हेल. तो उन्होंने जब उसे इमेजिन किया है तो उन्होंने बताया कि हेल में 9 सर्किल होंगे और जिसका जैसा सिन होगा उसको उसी के अकॉर्डिंग उस सर्किल में भेजा जाएगा और वहाँ उसे पनिश किया जाएगा. एज यू कैन सी अबाउट द सर्किल, that first circle is related to limbo, second circle is related to
lust, third for gluttony. So just like that. And John and Serio said that there is a similarity between the 9 lines of the poem and between the 9 circles of the hell. जैसे कि hell का स्ट्रक्चर एज यू कैन सी बिगर से स्मॉलर होता जा रहा है, वैसे ही पोएम का स्ट्रक्चर भी है. स्टार्टिंग में वर्ड्स ज़्यादा हैं एक लाइन में और धीरे धीरे लास्ट में वो कम होते जाते हैं. John and Serio remark that the rhyme scheme is also inspired by Dante's Inferno. जो इस पोएम की राइम स्कीम है, आई विल डिस्कस द राइम स्कीम in the next lecture, that is poetic devices. So I will tell you about the rhyme scheme. तो ये भी उन्होंने कहा है कि राइम स्कीम जो है वो भी इंस्पायर है. So now I will discuss about the theme of the poem because it is very important to know the theme, to understand the theme, to comprehend the text. So the poem deals with human emotions of desire and hatred which are highly destructive. As you also know, if one person is having so much desires, if person is having so much hatred in his hearts, it can destroy his own life. और इस पोएम में राइटर ये भी बताते हैं दैट मैन इज सफरिंग फ्रॉम द इंटेंसिटी ऑफ इमोशंस ऑफ ग्रीड, लस्ट एंड हेट्रेड, एंड देयर आर सो मेनी अदर इमोशंस ऑल्सो लाइक पैशन, डिज़ायर, ग्रीड. ओके, सो यहाँ पे पोएट ये भी बताते हैं कि आज के टाइम में जो ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर कई सारी वॉइसेस आ रही हैं एंड एक्सेस ऑफ इमोशंस हैं. एज यू नो, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड. अगर ग्रीड बहुत ज़्यादा है, एक्सेस में है, डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, किसी के मन में बहुत ज़्यादा हेट्रेड है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी लाइफ ही डिस्ट्रॉय कर सकती है. और राइटर यही कह रहे हैं कि अगर इसी तरह रहा, इसी तरह लोगों के मन में इस तरह के वॉइसेस आते रहें तो कहीं ना कहीं ये वर्ड मतलब ये ह्यूमैनिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी एक दिन. So the writer suggests us to eradicate the emotions of avarice and despise. Eradication मतलब किसी चीज़ को जड़ से ख़त्म करना, avarice मतलब excess greed for wealth and despise मतलब hatred. तो यहाँ पे राइटर हमें ये भी बताते हैं कि अगर हम इस दुनिया को बचाना चाहते हैं, हम इस ह्यूमैनिटी को बचाना चाहते हैं, तो हमें इन सभी एक्सेस इमोशंस को ख़त्म करना होगा. बिकॉज एक्सेस ऑफ दीज इमोशंस कैन डिस्ट्रॉय आवर होल लाइफ एंड द ह्यूमैनिटी ऑल्सो. So thus we can understand that the poet is trying to tell about the dark sides of humanity and which are caused by the voices like greed, selfishness and hatred. He also tries to resolve the conflict between desire and hate and frigidity and passion. And Frost warned the common man. कौन से कॉमन मैन? जो इस तरह के लोग हैं जो सेल्फिश हैं, अवेरियस हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा ग्रीडी हैं, लस्टफुल हैं, इंडिफरेंट हैं, जिन्हें किसी की कोई प्रॉब्लम से मतलब नहीं है, हेटफुल हैं, हेट्रेड है उनके मन में. सो द राइटर वॉन्ट्स दीज कॉमन मैन दैट दे शुड नॉट फॉरगेट द रियलिटी दैट दिस वर्ल्ड इज़ ट्रांजिटरी. ट्रांजिटरी मतलब जो परमानेंट नहीं है, जो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, और डेथ इज़ इनएविटेबल मतलब उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते. डेथ जो है वो शाश्वत सत्य है और कहीं ना कहीं हमें अपने अंदर इन सब इमोशंस को हटाना होगा, हमें एक अच्छा पर्सन बनना होगा. ये राइटर हमें यहाँ पे एक मैसेज देते हैं. सो आई होप दैट दिस थीम इज़ क्लियर टू यू. सो नाउ आई विल एक्सप्लेन द पोएम लाइन बाय लाइन. देयर आर ओनली 9 लाइन्स इन द पोएम बट स्टिल दिस पोएम इज़ हैविंग अ रियली ग्रेट मैसेज. So now the writer says, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. For instance, we have to understand that these two words, fire and ice, are symbolizing some emotions. Like fire is symbolizing desire, fury, anger, avarice mean greed, and cruelty, lust, and ice is symbolizing hatred, indifference, coldness, rigidity, insensitivity and intolerance. As I told you in the beginning of the lecture that this poem is a symbolic poem. So the writer is discussing that there are some predictions about the destruction of the world, about the end of the world, that by which means the world will be destroyed. तो कुछ लोगों का क्या कहना है कि ये वर्ल्ड जो है वो फायर से ख़त्म हो जाएगा और कुछ लोगों का कहना है कि आइस से ख़त्म होगा. अगर इसका ग्रामेटिकल मीनिंग देखें तो फायर यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है वोल्केनिक इरप्शन का या जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ होते हैं उसको बता रहा है कि ये जो वर्ल्ड है ये नेचुरल जो डिज़ास्टर होते हैं उससे ख़त्म हो जाएगा. और आइस से समझ में आ रहा है कि जो ग्लेशियर हैं वो मेल्ट हो जाएंगे. तो
इतना ज़्यादा वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा कि उसकी वजह से ये वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन ये केवल लिटरल मीनिंग है। लिटरली मतलब जो इसका रियल मीनिंग है वो क्या है कि राइटर यहाँ कह रहा है दैट द वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द ह्यूमन बीइंग्स हु आर हैविंग excess of desire, excess of fury, who are so much angry, who are full of greed, cruelty। ऐसे लोग हैं, या तो वो लोग इस वर्ड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, या वो लोग who are full of hatred, who are indifferent toward the pain of others, who are very much cold toward the suffering, who are rigid, who are insensitive, intolerant। जो ऐसे लोग हैं या तो वो इस वर्ड को ख़त्म कर देंगे। और यहाँ वर्ड किसे सिंबलाइज कर रहा है? ह्यूमैनिटी को। जैसा कि कहा जाता है कि ये जो वर्ड है ये वर्चूज़ पे बेस्ड है, ये अच्छी क्वालिटीज़ पे ही बेस्ड है। तो यहाँ राइटर बता रहे हैं कि ये वर्ड किस तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब यहाँ राइटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। तो यहाँ राइटर क्या बता रहे हैं कि मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ायर ज़्यादा ख़तरनाक है, डिज़ायर ज़्यादा पावरफुल है हेट्रेड से। बिकॉज जो बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखते हैं कहीं ना कहीं वो अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कोई भी मीन्स को अपनाते हैं और उसकी वजह से उनकी लाइफ ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि डिज़ायर एक ऐसा इमोशन है जो कहीं ना कहीं इस ह्यूमैनिटी को ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। सो आई होप दैट दीज 4 lines आर क्लियर टू यू। सो नाउ वी विल सी द एक्सप्लेनेशन। So as I told you in the beginning, the poet refers about the prediction about the end of the world, and there are 2 predictions that this world will be destroyed either by fire or either by ice। अब यहाँ fire से क्या मतलब है? That either deep heat or fire under the earth, जो मैंने बताया volcanic eruption की बात, या तो वैसे destroy होगा और it will be destroyed by the melting of ice from the snowy mountain that will be caused just by the global warming। तो यहाँ राइटर इन दोनों चीज़ों को बताता है। बट दिस इज़ ओनली द लिटरल मीनिंग। रियल मीनिंग क्या है? रियल मीनिंग ये है कि राइटर यहाँ पे आइस और फायर से ह्यूमन इमोशंस को सिम्बलाइज कर रहा है, एंड ही इज सेइंग दैट ईदर द डिज़ायर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड और द हेट्रेड, बिकॉज द मोर वी ट्राई टू सेटिस्फाई द डिज़ायर द मोर दे ग्रो। और हमारी डिज़ायर्स का कोई भी अंत नहीं है। जिस तरह आग है, जिस तरह फायर है बहुत जल्दी फैल जाती है, उसी तरह जो डिज़ायर है वो भी कहीं ना कहीं फैलती चली जाती है, वो कभी ख़त्म नहीं होती है। द मोर यू गेट द मोर यू वांट, वो कभी ख़त्म नहीं होगी और आपकी पूरी लाइफ को वो अफेक्ट करेगी। यही रीज़न है कि इसे फायर से कंपेयर किया गया है। One becomes selfish and sometimes cruel also to fulfill his desire. In today's world, mankind's greed is endangering the very existence of planet। और आपको भी पता है कि इतना ज़्यादा लोगों के अंदर ग्रीड बढ़ गया है कि जिसकी वजह से बहुत सारी क्राइम्स भी हो रहे हैं। अब यहाँ पे राइटर क्या कहता है? The word ice stands for hatred, indifference, coldness, as I told you earlier। और राइटर ये कहते हैं कि वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इंडिफरेंट टुवर्ड द फीलिंग ऑफ अदर, क्योंकि हेट्रेड जो है वो हमारी इमोशंस को ख़त्म कर देती है, हमें दूसरे की फीलिंग से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और इस वजह से द कोल्डनेस ऑफ आइस, जैसे कि कोल्डनेस ऑफ आइस कैन नम आवर सेंसेस, सिमिलरली द कोल्डनेस ऑफ हर्ट्स कैन नम आवर काइंडनेस। जैसे कि आइस जो है उससे हमारी सेंसेस एकदम नम हो जाती हैं, उसी तरह हेट्रेड भी हमारी काइंडनेस को पूरी तरह से ख़त्म कर सकती है। इसीलिए हेट्रेड को आइस से कंपेयर किया गया। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। सो द राइटर सेज दैट बोथ फायर एंड आइस आर गोइंग विद सच अ रैपिड स्पीड दैट द वर्ल्ड विल सून पेरिश मतलब डिस्ट्रॉय। राइटर कह रहा है कि इतना ज़्यादा स्पीड से ये फायर एंड आइस मतलब ये सारे इमोशन इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि ये वर्ड बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन राइटर का अपना एक्सपीरियंस है कि डिज़ायर ज़्यादा पावरफुल है इस वर्ड को डिस्ट्रॉय करने में। सो एज यू कैन सी इन द फर्स्ट 4 lines द राइटर हैज़ पोर्ट्रेड द डार्क साइड्स ऑफ ह्यूमैनिटी। ही सेज दैट डिज़ायर इज़ मोर इफेक्टिव फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल, in the olden times the kings tried to increase their kingdom as much as they could,
जो पहले का टाइम था उस समय किंग्स जो है अपना राज्य कितना बढ़ाना चाहते थे, और वो जितना राज्य बढ़ाते थे उनकी डिज़ायर और ज़्यादा बढ़ती जाती थी, इस वजह से वॉर होते थे। तो कहीं ना कहीं ये भी ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ तो वो भी कहीं ना कहीं डिज़ायर और हेट्रेड के कारण ही हुआ। तो राइटर यहाँ पे यही पॉइंट कहना चाहते हैं। आई होप दैट दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। सो नाउ लेट्स सी द रिमेनिंग लाइन्स। The writer says, if it had to perish twice, I think I know enough of it to say, for destruction, ice is also great and would suffice. So now, as we have read in the beginning lines, that the writer is discussing about the destruction of this world, that how this world will be destroyed by the emotions of desire and hatred. तो फर्स्ट 4 लाइन्स में हमने ये डिस्कस किया कि राइटर ने डिज़ायर के बारे में बात करी, पर इस लाइन में राइटर ने हेट्रेड के बारे में बात करी है कि अगर ये वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हुआ लेकिन उसमें भी कुछ ह्यूमैनिटी बची रह गई तो वो कैसे डिस्ट्रॉय होगी। उसके लिए हेट्रेड जो है वो इमोशन काफ़ी है। अब यहाँ पे राइटर हेट्रेड को उतना इफेक्टिव नहीं मानते हैं, लेकिन वो भी एक पावरफुल इमोशन है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी वॉर हुए हैं या जो भी डिस्ट्रक्शन होता है, टेररिज्म है या जो भी बुराइयां हैं हमारी सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं इन्हीं इमोशंस के कारण हैं। कोई पर्सन किसी से हेट्रेड करता है और बहुत सारे क्राइम्स होते हैं, वो क्यों हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ हेट्रेड। तो हेट्रेड कहीं ना कहीं हमारी ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमारी इस वर्ल्ड को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसीलिए राइटर बोलते हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा से डिस्ट्रॉय होना पड़े तो उसके लिए हेट्रेड इमोशन काफ़ी है। जैसा कि आप जानते हैं डिज़ायर एक ऐसा इमोशन है जो किसी को बहुत आसानी से बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकता है, लेकिन आइज़ जो है वो किसी को डिस्ट्रॉय तो करेगा पर धीरे धीरे। और कई बार ऐसा क्या होता है कि जो हेट्रेड है, आइज़ से आप सिंबलाइज कर रहे हैं हेट्रेड को, जो हेट्रेड है कई बार क्या होता है किसी पर्सन को पूरी लाइफ परेशान करता है। और आपने बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे देखे होंगे, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया वॉर का, टेररिज्म अटैक का। ये सब क्या, इस सब के पीछे क्या रीज़न है? जस्ट बिकॉज ऑफ हेट्रेड द पीपल क्रिएट सो मच डिस्टर्बेंस। तो यहाँ पे राइटर उसी की बात कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये लाइन भी समझ आई होगी। सो नाउ लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। सो एज आई टोल्ड यू, स्टार्टिंग में राइटर ये कहते हैं कि या तो लोगों की जो पैशन है, एक्सेस पैशन है, या तो वो, या तो ज्वेलसी, हेट्रेड, ये सब रीज़न बनेगी इस ह्यूमैनिटी को ख़त्म करने के। लेकिन पोएट इस बारे में श्योर है कि ह्यूमैनिटी ये ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती है। तो पहले तो वो कई कहते हैं कि वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए फायर काफ़ी है, बट इन केस अगर इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो कहीं ना कहीं ये सेंटेंस ही अपने आप में एक कॉन्ट्रडिक्टरी है। जो चीज़ ऑलरेडी ख़त्म हो गई है वो दोबारा कैसे डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन यहाँ राइटर अपने बातों को प्रूव करना चाहते हैं, लोगों को समझाना चाहते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो वही समझा रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो उसके लिए हेट्रेड काफ़ी है। यहाँ पे आइज जो है वो हेट्रेड को सिम्बलाइज करते हैं, एंड द राइटर सेज दैट हेट्रेड इज ऑल्सो एज मच एज पावरफुल एज डिज़ायर। फॉर एग्जाम्पल, हेट्रेड इज द रूट कॉज ऑफ रेसिज्म एंड वॉर। हेट्रेड की वजह से ही तो लोगों के मन में इतने ज़्यादा भेदभाव आता है। वाइल डिज़ायर कंज्यूम्स क्विकली, हेट कैन ऑकर एंड लिंगर इन पीपल्स माइंड एंड हर्ट फॉर ईयर्स एंड समटाइम्स इवन लाइफ टाइम। अब यहाँ राइटर क्या कहते हैं? राइटर कहते हैं कि डिज़ायर जो है वो किसी चीज़ को जल्दी ख़त्म करती है, बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन जो हेट्रेड है दैट इज़ जस्ट लाइक आइज़। जैसे कि जो चीज़ जलती है वो तुरंत ख़त्म हो जाती है, लेकिन आइज़ के थ्रू जो चीज़ ख़त्म होती है उसमें टाइम लगता है। इसलिए राइटर कहते हैं कि दोबारा से अगर इस वर्ड को डिस्ट्रॉय होना हो तो उसके लिए हेट्रेड काफ़ी है, क्योंकि हेट्रेड एक ऐसा इमोशन है जो लोगों के मन में काफ़ी समय तक रह सकता है। लिंगर मीन्स बहुत समय तक रहना, और कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी के मन में तो पूरी ज़िंदगी, पूरी लाइफ टाइम वो हेट्रेड रहती है। एंड हेट कंज्यूम्स द हेटर परहैप्स इवन मोर दैन द पर्सन और ग्रुप हेटेड। और ऐसा भी होता है कि जो पर्सन किसी पर्सन को हेट्रेड करता है तो हेट्रेड करने वाले की लाइफ ज़्यादा उससे अफेक्ट होती है बजाय कि जिसको हेट कर रहा है उसके, और इससे उसकी पूरी लाइफ ख़राब भी हो जाती है। So thus we can say that hatred is also very much powerful emotion to destroy the whole world, and it has the full capacity to make harm to the world, to the humanity.
और हमने ये भी देखा कि राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि हेट्रेड डिज़ायर्स इतना पावरफुल नहीं है, बट अगर इस वर्ड को दोबारा डिस्ट्रॉय होना पड़े तो इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होगा। जैसे कि आप आज देख सकते हैं आज का टाइम क्या बहुत ज़्यादा करप्शन हो गया है, बहुत ज़्यादा रेसिज्म बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा टेररिज्म है। ये सब क्यों है? ये सब हेट्रेड की वजह से ही तो है। तो राइटर यही कहना चाहते हैं कि अगर इसी तरह चलता रहा, इसी तरह लोगों के मन में दूसरों के लिए हेट्रेड की भावना आती रही, तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये दुनिया है ये पूरी ख़त्म हो जाएगी और लोग एक दूसरे से बेहतर बनने की होड़ में, बेहतर बनने की रेस में पूरी ह्यूमैनिटी को डिस्ट्रॉय कर देंगे, क्योंकि ये सब इमोशन इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इसकी वजह से ये वर्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। So this was all about the explanation of the poem. I hope that these points are clear to you. जो भी क्वेश्चन आंसर है वो इस नोट्स में ही क्लियर हो जाएगा। लाइक द वर्ड्स फायर एंड आइज आर सिम्बलाइजिंग विच इमोशंस, ये सब मैंने आपको बता दिया और इसका रियल मीनिंग क्या है वो भी मैंने इस पोएम में डिस्कस किया है। तो प्लीज़ इस पोएम के नोट्स से अपने नोट्स बनाइएगा, क्वेश्चन आंसर के लिए प्रिपेयर करिएगा और आपको बहुत हेल्प करेगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। दैट्स वाई आई हैव डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। So now let's discuss the central idea of the poem, because sometimes the central idea of the poem is also asked in the examination. Along with that, I will discuss the writer's message. So the poet gives a message that this world is transitory and nothing is perennial in this universe. तो यहाँ पे राइटर क्या मैसेज देते हैं कि ये जो वर्ड है वो ट्रांजिटरी है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर व्हेन आई वाज डिस्कसिंग द थीम। ये वर्ड ट्रांजिटरी है, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा, परमानेंट नहीं है। द वर्ड विल बी डिस्ट्रॉयड ईदर बाय फायरी इमोशन और बाय द कोल्ड एटीट्यूड ऑफ द पीपल टुवर्ड्स ईच अदर। क्योंकि राइटर का मानना है कि जो फायरी डिज़ायर्स हैं उसकी वजह से भी ये वर्ड ख़त्म हो सकता है, एंड जो आइसी हेट्रेड है उसकी वजह से भी ये वर्ड ख़त्म हो सकता है। अब डिफरेंस क्या है कि जो फायरी इमोशंस है, लाइक डिज़ायर जो है वो बहुत जल्दी किसी को ख़त्म करता है, और जो आइस वाले इमोशन है, जो आइसी इमोशन है जैसे हेट्रेड है, किसी को धीरे धीरे ख़त्म करता है। तो राइटर यहाँ भी यही कहते हैं कि इफ़ द वर्ड हैज़ टू डिस्ट्रॉय टॉइस, ice would be as good as the fire. If fire would lead to rapid destruction, ice would lead to silent damage. तो ये आपको ध्यान रखना है, as I've told you about the characteristic of fire and ice. Similarly, if fire is pure passion, ice is pure reason. तो ये लाइन जो है ये भी दांते के इन्फर्नो से ही इंस्पायर्ड है, वहाँ पे उन्होंने ये बात डिस्कस करी है। Thus the poem very artistically underpins the philosophy that we let our emotions rule us, and if we don't control them, they will surely bring us all on the verge of chaos. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। राइटर यहाँ कहता है कि हमें अपने इमोशंस को खुद पे कंट्रोल नहीं करने देना है, बल्कि हमें खुद उन पे कंट्रोल रखना है। जिस समय हमारे इमोशंस हमारे माइंड पे कंट्रोल करने लगेंगे, हम अपने इमोशंस के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी। And the poet wants to convey the message that selfish desire and hatred holds the power in it to destroy the whole world. और ये जो selfish desires हैं, जो hatred है, कहीं ना कहीं उनके अंदर इतनी पावर होती कि वो किसी चीज़ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दें। So the meaning of the poem is that human emotions are self-destructive when we allow to control our life, and these emotions can destroy a person morally, mentally and physically. And yes, it is the reality. Permanent peace on earth can be brought only through patience, understanding, tolerance and acceptance. तो यहाँ पे उन्होंने एक सॉल्यूशन भी दिया है कि इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे अगर हमें पीस लाना है तो उसके लिए हमें कुछ अपने अंदर इमोशंस लाने होंगे, हमें कुछ चीज़ों को फॉलो करना होगा। लाइक वी शुड हैव पेशेंस and we should have understanding, we should have tolerance, acceptance, we should have the feeling of equality, we should have sympathy, we should have all these emotions within us, and through self realization man can develop an understanding and the truth of oneness of all mankind. और किसी पर्सन को अगर इन सब चीज़ों का सेल्फ रियलाइजेशन होगा, केवल तभी वो सारी मैनकाइंड को, सारी ह्यूमैनिटी को बांध के रख सकता है। सो बेसिकली इस पोएम में हमने ये देखा कि राइटर ने हमें प्रेडिक्शन के बारे में बताया कि ये वर्ड कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है। कैसे हो सकता है? फायर डिज़ायर्स और आइसी हेट्रेड से, मतलब एक्सेस
इमोशन से जो कि हमारे लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव हैं, उससे हमारी ह्यूमैनिटी पूरी ख़त्म हो सकती है। तो हमें क्या करना है कि हमें अपने ऐसे इमोशंस को, मतलब ग्रीड को और डिज़ायर्स को, इन सबको ख़त्म करना है और एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना है। हमें ह्यूमैनिटी को बचा के रखना है। तो राइटर हमें कुछ तरीके बताता है, लाइक वी शुड हैव पेशेंस, वी शुड हैव अंडरस्टैंडिंग, वी शुड हैव टॉलरेंस, और इस तरीके से हम इस ह्यूमैनिटी को बचा सकते हैं। सो विद दिस पॉइंट माई लेक्चर इज़ एंडेड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। स्टूडेंट, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, ऑलमोस्ट 1 वीक का टाइम लग गया इसे बनाने में। एज यू कैन सी द प्रेजेंटेशन, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू मेक द लेक्चर इन दिस वे। सो आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और जो भी नए व्यूवर हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर